Thank you so much. My pleasure, ma'am. So, ma'am, before starting with the session, I would take this opportunity to introduce you to our lovely audience out there. So, may I start with your introduction? Yes, please go ahead. So, today we have Sonal Goyal, ma'am, with us. She's a 2008 batch IAS officer with All India rank 13. She's also a TEDx speaker and mentor for UPSC aspirants. Ma'am is currently posted as President Commissioner, Tripura Bhavan in New Delhi. She's a commerce graduated from prestigious SRCC, Sri Ram College of Commerce, and then she goes on to pursue CS, LLM, and MA in Public Policy. Ma'am is widely known for her work in rural development, women empowerment, and health and sports. She has been featured in Top 25 Women Transforming India by Niti Aayog and United Nations back in 2016. And as well as she's been facilitated as part of 30 Web Wonder Women from Ministry of WCD, GOI, and Twitter India in March 2019. She has been appointed as Honorable Advisor at BRICS CII Young Forums Leaders Forum. Welcome to Exodium, ma'am. We are very grateful to have such an eminent personality with us today. Thank you so much. Thank you so much. My pleasure, ma'am. So we will before starting with the question, yeah, ma'am, sure. your voice is lagging. Sorry? Your voice is lagging a bit. But at my end, the connection is okay. There is no network problem at my level, actually. So, ma'am, before starting with the questions, I would like to introduce the society and the topic as well. Yes, please. Exodium. Exodium is the civil services cell of Sri Venkateshwara College, founded in 2020. Insurgence is the online flagship event of Exodium, and this is the fourth volume of Insurgence. And the theme for this event is Decoding Stream Barriers and Dreams, which talks about the importance of streams in pursuing civil services. So, being a commerce student herself, ma'am is going to talk about commerce and the problems and barriers faced by a commerce student. So, ma'am, I guess we should start with the questions now. Definitely. Go ahead. So, ma'am, my first question would be that you have graduated in commerce, then pursued CS, LLM, and MA in public policy. So, when did you exactly prepare for civil services? सभी को मेरा नमस्कार. First of all, when I was doing my graduation from Sri Ram College of Commerce, so I was in my third year, and I was also doing CS at that time. So it was actually during that time जब मैंने civil services के बारे में पढ़ा. And in the session today, actually, I would use both Hindi and English. I will use both the languages. I will speak in Hindi as well as in English. So जब मैंने civil services के बारे में पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे attempt देना चाहिए. I should be in civil services because it gave a kick to me from inside that it will give me an opportunity to serve the people and the country, to do something good for the nation. But जब मैंने ये बात discuss करी, so readily acceptance. There were a lot of debates, discussion, and then, of course, especially with my parents and family, you know, all those apprehensions. So, basically, हमारा native place पानीपत district है हरियाणा में, so which has a predominantly patriarchal driven mindset society. So then, all those apprehensions came into the minds of my parents, especially my father, कि ये मैं उस टाइम CS भी कर रही थी ग्रेजुएशन के साथ में कि why this shift from corporate sector to civil services, क्यों ये शिफ्ट करना है, then शिफ्ट करना है तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, this examination is so tough, even after selection which service I would get, which rank I would get, which cadre I would get, and then how will I settle my family life, you know. So all these, ये जितना भी चीजें हैं ये सब माइंड में apprehensions आई, and then they were not accepting, but then I kept on discussing, I kept on requesting. So then my father said कि ठीक है अगर आपको करना है तो आप कीजिए,
but then you should have a plan B in your life. So by plan B he meant कि अगर आपका सिविल सर्विसेज में नहीं होता तो आप लाइफ में और क्या करोगे, बिकॉज ही firmly very well he had always appreciated the cause of education more so for female girl child. तो फिर मैंने उनकी एडवाइस मानी पापा की, एंड देन मैंने पहले अपना ग्रेजुएशन मेरा 2003 में कंप्लीट किया. देन आई कंप्लीटेड माय सीएस इन 2004 जिसमें मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ. देन आई एक्चुअली गेव द एंट्रेंस ऑफ एलएलबी फॉर डूइंग माय एलएलबी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. मेरा उसमें एडमिशन हो गया विच वॉज अ रेगुलर कोर्स. I also started my part-time job as a company secretary because मुझे लगा कि I should have some professional experience as well as I should also finance my own studies at least to an extent. तो ये सब को ध्यान में रखते हुए I also started my part-time job and then of course my focus was on civil services preparation. So basically 2004 से 2007 तक ये तीनों चीजें पैरेलल थी मेरी लाइफ में. The focus was on civil services preparation. Law की classes attend करती थी, which was also a regular course, and also doing my part-time job. So things were not easy, very difficult, time management, then sometimes disorientation, etc., etc. And I gave my first attempt in 2006. और जब वो attempt दिया तो I wrote prelims, I wrote mains, but I did not get an interview call. So interview call नहीं आई तो I was definitely very much demotivated, dejected. But then I collected all my strength and energy and I gave a commitment to myself कि अब जो मैं attempt दूंगी that would be my best attempt. तो taking that thing into my in my side. So that was a challenge which I gave to my own self. And फिर मैंने जो attempt दिया उसमें I improvised my shortcomings, I worked harder, and जितना भी मैं कर सकती थी वो दिया. And then I qualified in the civil services examination in 2008, May 2008. The result was announced and I got all India rank 13. I joined civil services. I joined Labasna, Mussoorie for my training in September 2008, and after a few months, so basically in 2008, basically in December, I think our cadres were allocated and I was given Manipur Tripura cadre. So this is, and then I joined the cadre in June 2009. From 2009 to 2016, basically more than 7 years, I worked in Tripura. I worked in various field profiles. उसके बाद में I joined Haryana on inter-cadre deputation. हरियाणा में मेरा 4 years का tenure रहा, and then I'm back to my cadre Tripura. Initially, I was in Tripura for some days, and now I'm posted as Resident Commissioner, Tripura Bhavan, based in Delhi. So this has been my journey, like the shift from corporate sector to government to civil services, with an intention of working for the nation, for the country, doing something good for the society. And I think last 14-15 years में मैंने यही सीखा कि this job gives you lot many opportunities for serving the people, serving the society, and you can do a lot. Of course, there are challenges. There are numerous challenges associated with civil services in terms of being you're being transferred, political interferences, political influences. वो सब तो है, but still you can still do a lot which you want to do. Thank you, Pam, for sharing this information. In the starting, you mentioned about Plan B. So, what's your idea of having a Plan B in life? Is it important, especially when it comes to exams like civil services, which is very competitive? So, what's your idea about the I same? think definitely. In fact, क्या है कि हमें एक चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हमें लाइफ में क्या करना है. सो व्हाट इज इट दैट वी वांट टू अचीव इन लाइफ. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका एम है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उसके साथ में एक एसोसिएटेड क्वेश्चन ये भी आता है कि क्यों जाना है. सो व्हाई इज इट दैट यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, एंड देन हाउ विल यू अचीव, हाउ विल यू गो रीच देयर. सो ये जो तीन चीजें हैं, जो तीन एस्पेक्ट्स है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, दीज आर इंटरकनेक्टेड. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ माई एम इज दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, और जिसके लिए मुझे उस टाइम में मैगजीन में पढ़ के मुझे लगा कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रह के वो नहीं कर पाऊंगी और मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, एंड आई वुड achieve my aim of serving the society and country. So that is one part. But having plan B is also important because
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तैयारी में लगे रहो या आप एक चीज पे फोकस करके डेफिनेटली कर रहे हो, बट देन ड्यू टू सम रीजन, बिकॉज दिस एग्जाम इज सो टफ, इसमें इतने सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं, एंड अगर वो क्लियर नहीं करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट फील दैट इट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज ऑल्सो वेरी important to have in your mind कि even if you don't clear civil services, so you should have this preparation in yourself कि अगर मेरा civil services में भी नहीं होता है तो I would do this और I would do that. So having a plan भी, कई लोग इसको criticize भी करते हैं when I say कि प्लान बी होना चाहिए, तो पीपल क्रिटिसाइज कि अगर आप प्लान बी का बात करो इसका मतलब यू डोंट हैव faith in your own capacity or you are having a self doubt. So it is not having a doubt on your capability, it is having a reality check कि हम 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स हैं, वो प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे हैं और सिलेक्शन फ्यू हंड्रेड में है. अगर हम उस फ्यू हंड्रेड में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं तो जो हमने टाइम उसमें एनर्जी वेस्ट की, उसमें इन्वेस्ट की, टाइम अपना, फाइनेंसेस अपना, एनर्जी अपना, एंथुजियाज्म, अपनी एस्पिरेशंस और प्लस उससे जो अपनो नॉलेज गेन होगी, तो फिर उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे या आपका ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन क्या होगा. सो फॉर माय केस, मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं होता, आई वुड डेफिनेटली हैव जॉइंड द कॉर्पोरेट सेक्टर बिकॉज मेरी प्लेसमेंट थर्ड ईयर में भी हो गई थी 2 जगह पे, बट आई डिड नॉट जॉइन बिकॉज आई हैड टू स्टडी फर्दर. So I would have taken maybe a corporate profile, corporate professional profile, do some job for some years, and then start my NGO. And NGO for, helping the people with some specific aims and objective. And then later on maybe become an independent entrepreneur या अपना कोई firm setup करती. So that was my plan B. And that was a reality check, reality, statement which I had made for my own self. And I think it is very much relevant for all of us to have plan B in life कि अगर आप एक चीज X को अचीव करना चाहते हैं और वो चीज आप उस तरीके से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज को दूसरे तरीके से, what is that why that you will have, that is important to have in back of your mind, so that when you have failures, when you don't reach up to that level, then you have some सपोर्ट इन योर माइंडसेट. आपके दिमाग में कुछ ओरिएंटेशन है, आप उसको फेस कर पाओ, एंड देन यू ओवरकम एंड देन वर्क ऑन द ऑल्टरनेटिव. देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट, आई थिंक. That's very enlightening, ma'am. I thank you for clearing this out. So moving to the next question, I would say that you have cracked this exam back in the 2008. So there's a change in the pattern in the syllabus of the exam. So what should be the strategy and the approach to crack this exam now in 2023? आई थिंक देर आर लॉट मेनी चेंजेस. सो मेरे टाइम में अगर मैं बात करूं 2008 में, तो प्रीलिम्स में ही वी डिडंट हैड सीसेट. प्रीलिम्स में एक ऑप्शनल होता था और एक जीएस का टॉपिक, एक जीएस का सब्जेक्ट रहता था. एंड प्रीलिम्स में वी नेवर हैड दिस नेगेटिव मार्किंग. अब तो सीसेट है, नेगेटिव मार्किंग है. एंड मेंस में भी देर इज अ चेंज कि मेंस में एट माय टाइम देयर वर 2 ऑप्शनल्स. सो माय ऑप्शनल्स वर कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Now there is only 1 optional. So and जो अभी एक ऑप्शनल है, उसके अलावा भी जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन इन एसे पेपर there is a change. Now they are asking 2 essays, and subjects like ethics has been added. So basically we have 5 GS related topics, 2 optionals. 2 ऑप्शनल के सॉरी एक ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. And then we have English and 1 vernacular language. So total 9 papers. So I think subject pattern में change आया है. The course curriculum has changed. But what remains important is that your hard work is the key to success. That is very important. So आपका चाहे prelims में हम बात करें, prelims is like more of extensive study. और prelims में पहले जो था कि हम हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का रिस्क ले लेते थे. अभी क्या है कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इट हैज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो. सो वो चीज को ध्यान में रख के, वो जो कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं ना बाय एलिमिनेशन, सो इफ वी डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, देन वी
हम उसको 4 से 2 चॉइसेस में लेके आते हैं और उसमें से 2 में से जो लगता है कि जो ठीक होगा उसको मार्क करते हैं। तो हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सा माइंड में रखें। जस्ट डू नॉट ओवर अटेम्प्ट प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली। और जो मेंस है, मेंस में जो चीज पहले इंपॉर्टेंट थी वो आज भी इंपॉर्टेंट है, दैट योर आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपका रिपीटेड रिवीजन, योर ओन नोट्स एंड योर आंसर राइटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ पॉसिबल हम उसमें लाइक जो मैं सजेस्ट करती हूँ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को कि मिनिमम 2 साल हमें तैयारी के लिए चाहिए। सो मतलब 1 साल तो प्रीलिम्स जब हम सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज थिंकिंग अबाउट अपेयरिंग इन 2024 एग्जामिनेशन, सो दैट वुड बी इन मई और जून प्रीलिम्स जब भी होगा, तो उससे कम से कम 1 साल पहले तैयारी का, प्रिपरेशन का माइंड में आ जाना चाहिए। एंड देन वंस यू start the preparation, you have to break your timelines. So initially 5 से 6 महीने जो है हमें फोकस करना है दोनों प्रीलिम्स और मेंस, योर ओवरऑल ओरिएंटेशन, योर ऑल सब्जेक्ट्स, उस पे ध्यान देना है। देन यू हैव योर 3-4 months इन्वेस्टेड इन मेंस। और ये जो टाइम है जो मेंस के लिए आप अभी लगाओगे, फॉर एग्जांपल अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ये टाइम बाद में नहीं मिलेगा। व्हेन यू फाइनली राइट योर प्रीलिम्स एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस, उसका जो टाइम गैप है वो काफी कम है, यू वोंट हैव दैट मच टाइम। सो इससे पहले क्या है कि अपना बेस फाउंडेशन जो है उसको हम तैयार करके रखें। दैट विल एक्चुअली हेल्प योर ओन नोट्स फॉर रिविजन, योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, वो सब हम करें। एंड देन फाइनली प्रीलिम्स से 2 महीने पहले जस्ट शिफ्ट टू प्रीलिम्स, 2 से 3 महीने पहले, in the way whichever you feel comfortable, 2 से 3 महीने पहले you shift to the prelims. So basically this is 1 year before you write prelims, and then when the prelims comes you write prelims. prelims लिखने के बाद में आप थोड़े दिन का ब्रेक लेके immediately start your mains की पढ़ाई। of course prelims में qualify हो रहा है नहीं हो रहा उसकी guesses लगनी start हो जाती हैं, but my advice to aspirants थी कि अगर आपका average paper गया है so do not waste your time, just start preparing for mains। और मैंने देखा है एस्पिरेंट्स पहले वो सोचते हैं पहले प्री का रिजल्ट आ जाए फिर देन दे एंड अप इन वेस्टिंग देयर टाइम, और फिर बाद में रिजल्ट के बाद में टाइम उतना मिलता नहीं है, 1.5 से 2 महीना होता है, विच इज वेरी लेस एक्चुअली। सो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी यूटिलाइज दिस टाइम, पूरा मेंस पे फोकस करें। यू गिव योर मेंस एंड देन आफ्टर यू राइट योर मेंस टेक अ ब्रेक ऑफ few days, then you again start for the interview. So this is how the cycle is. So चाहे एग्जामिनेशन 2008 में 7 में दिया हो या अभी दिया हो, जो कोर है वो सेम ही रहेगा। दैट यू हैव टू कवर अप योर सिलेबस, रीड ईच टॉपिक विच इज देयर इन द सिलेबस। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको छोड़ना नहीं है। मेंस में इंपॉर्टेंट क्या है, यू ट्राई टू अटेम्प्ट एवरीथिंग, बिकॉज उसमें तो एक नंबर से आपका जो सिलेक्शन है ना उस पर फर्क पड़ता है, बिकॉज प्रीलिम्स के मार्क्स तो आगे काउंट नहीं होते, दे आर ओनली क्वालिफाइंग, बट मेंस के जो मार्क्स हैं उससे आपका सिलेक्शन, आपका रैंक, एवरीथिंग, योर मेरिट, एवरीथिंग वुड बी डिसाइडेड। सो देयरफॉर गिव अटेंशन टू दैट एंड ट्राई एंड attempt all questions which are there in the mains examination. So basically this is how I feel should be the strategy of any aspirant who is writing the civil services examination. Thank you, ma'am, for sharing these insights. I hope all the aspirants watching this live get an idea and perspective about mains writing and all the tips you gave. So, moving to the next question, the core question of this whole live session. You were studying commerce. What were the difficulties that you faced in your preparation journey because of your stream? Did it help you, or do you have to put in some extra effort being coming from a आई थिंक कॉमर्स के स्टूडेंट्स का थोड़ा एज भी रहता है इन द सेंस कि हमारा जो जनरल स्टडीज में मेंटल एप्टीट्यूड एंड ऑल्सो वी आर प्रिटी गुड इन मैथ्स, अकाउंटेंसी एटसेट्रा as compared to maybe a student from humanities background. But ये जो एग्जाम है ना, this exam is an equalizer. So humanities के स्टूडेंट के लिए पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, उनके लिए वो उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स रहे होंगे। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि एटलीस्ट मेरे केस में आई वाज क्वाइट वीक इन द
these topics like history, civics and polity, geography, international relations. क्योंकि मैंने ये 10th के बाद कभी पढ़ा ही नहीं था एंड क्योंकि मैंने अपनी जर्नी शेयर करी तो मैंने तो ग्रेजुएशन के भी लास्ट लेग में लास्ट ईयर में मैंने डिसाइड किया सिविल सर्विसेज के बारे में करना तैयारी एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड माय प्रिपरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन. सो यू सी देयर इज अ लॉन्ग गैप ऑफ मोर देन 5 एनसीईआरटीज वगैरह मैंने कुछ पढ़ी ही नहीं थी, है ना. सो देयरफॉर इट टुक मी क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन. जो मेरा मेंस का जो मार्कशीट आया तो उसमें मेरे जीएस में ही मार्क्स कम थे. इवन दो अगर मेरे 3 या 4 नंबर ज्यादा होते तो आई वुड हैव क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू बट देन मेरिट लिस्ट में नाम मेरा नीचे की तरफ होता अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं देती हुई तो अगर इंटरव्यू देती हुई तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में उसी के ऊपर फोकस किया बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टूड. I also realized that this is something which I need to improve. I was comfortable in commerce and public administration, but I needed to improve on these topics and then invest more time in general studies. But then फिर मैंने उसकी बहुत अच्छी तैयारी करी मुझे लगता है and I got a score which was even more than both commerce and pub ad. मेरा फिर जो सेकेंड अटेम्प्ट में जो स्कोर आया मेंस में वो जीएस में कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा था स्कोर. So there is nothing like weakness या challenges. This exam is an equalizer. किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का कोई टॉपिक स्ट्रांग होगा, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट का कुछ टॉपिक होगा, एक डॉक्टर कोई आते हैं, कोई एमबीए आते हैं, तो एवरीबडी विल हैव सम स्ट्रांग पॉइंट, सम स्ट्रांग एरियाज. But it is your own orientation, your own will and commitment to invest your study hours जो मैटर करते हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जो मेरी कॉमर्स की नॉलेज है वो मुझे आज भी सर्विस में हेल्प कर रही है इन टर्म्स ऑफ मैं जब सीएस एज अ सीएस मुझे पता है कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एमसीए, हाउ डू यू गेट इट रजिस्टर्ड. सो जब मैं फरीदाबाद में सीओ स्मार्ट सिटी थी आई वाज द फर्स्ट ऑफिसर बिकॉज उसी टाइम में उसका अर्बन मिशन में स्मार्ट सिटीज मिशन में सिलेक्शन हुआ था. सो नोबडी न्यू कि क्या करना है, बट सिंस आई एम कंपनी सेक्रेटरी तो मुझे पता था कि कंपनी का एसपीवी बनेगा, हाउ डू वी मेक द रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन. ऑफ कोर्स बाद में एक फर्म को हायर किया गया बट बेसिक नॉलेज थी. एंड सिमिलरली माय लीगल नॉलेज आल्सो. सो आई हैड डन एलएलबी बिफोर आई केम इनटू सर्विस. एलएलएम तो आई कंप्लीटेड रिसेंटली लास्ट ईयर ओनली as part of the distance learning, and MA Public Policy also I did after I qualified for the civil services. So वो तो definitely help करता ही है, आपका कोई भी professional knowledge जो है वो definitely help करता है. और मेंस में क्या है कि मेंस में your marks are very important because उसी से आपका रैंक डिसाइड होगा. और मेरा जो था मेंस में काफी अच्छा स्कोर था. आई थिंक आई हैड इन रिटर्न जो मेरे मार्क्स थे दैट वाज इन टॉप 3 ऑफ माय बैच. बट मेरा इंटरव्यू में स्कोर थोड़ा कम था. आई हैड द इंटरव्यू बोर्ड ऑफ प्रोफेसर डीपी अग्रवाल सर विच वॉज कंसिडर्ड द टफेस्ट बोर्ड एट दैट टाइम व्हेन आई वाज अपेयरिंग. तो मेरा इंटरव्यू बोर्ड में थोड़े मार्क्स कम थे एज कम्पेयर टू माई कलीग्स हु वर इन टॉप 20 रैंक. सो देयरफॉर आई गॉट रैंक 13th. सो आई मीन आई थिंक चाहे कॉमर्स हो चाहे ह्यूमैनिटीज हो या साइंस बैकग्राउंड हो, एवरीबडी वुड हैव एन एज and everybody would have a weak area. and commerce के लिए I would repeat कि हमें GS पे थोड़ा सा शायद ज्यादा मुझे ध्यान देने की जरूरत पड़ी थी क्योंकि मैंने 10th के बाद से ये सब सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे. and I had immediately decided कि मैं सिविल्स में जाऊंगी तो मैंने क्लास 6 से NCERTs को पढ़ना दोबारा स्टार्ट किया. and I had to invest much more time I think in brushing up my knowledge and clearing my concepts, revising, re-revising. I'm sure this has give a boost to all the aspirants for watching this live and preparing for civil services, especially those belonging to commerce stream. And you are an example to a successful IAS officer. So moving on to the next question, ma'am. You chose, as you mentioned, that you chose commerce and public administration as your optional subjects. So what made you choose these subjects, and what are the things that one should keep in mind while choosing for optional subjects? तो मेरे लिए चॉइस काफी इजी था लेना कॉमर्स क्योंकि जब मैंने यूपीएससी का सिलेबस देखा
तो द टॉपिक्स लाइक सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, वो सब तो आउट ऑफ क्वेश्चन थे, क्योंकि मेरा कोई कॉन्टेक्स्ट, मेरा कोई टच ही नहीं था। और हमारे टाइम में प्रीलिम्स में एक सब्जेक्ट लेना होता था ऑप्शनल, और दो आपको लेने होते थे मेंस में। तो मैंने प्रीलिम्स के लिए कॉमर्स चूज किया बिकॉज व्हेन आई रेड द सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने सीएस भी किया हुआ था, तो आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल कि मैंने ये सब पढ़ा हुआ है, तो मेरे को आसानी रहेगी इसको आगे इसमें इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरे को बेसिक पे काम नहीं करना पड़ेगा। दैट वाज वन रीजन। And similarly was the syllabus for mains also. They were quite, I felt quite comfortable as far as commerce is concerned. और फिर जो बात थी सेकंड ऑप्शनल लेने की, तो आई हैड टू मेक अ चॉइस। सो मेरी चॉइस थी लॉ में, इनफैक्ट बिकॉज आई वाज ऑलरेडी डूइंग एलएलबी, तो मेरी चॉइस थी बेसिकली लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फिर जब मैंने उसके सिलेबस देखे, तो मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस इसलिए अच्छा लगा बिकॉज उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मुझे लगा कि व्हेन आई क्लियर सिविल सर्विसेज, जब मैं सर्विस में आऊंगी तब ये नॉलेज मुझे काम आएगी। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी एंड वेरियस थियोरीज एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें पेपर 1 है वो थ्योरी ओरिएंटेड है, और पेपर 2 इज द प्रैक्टिकल रेलेवेंट एप्लीकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। तो मुझे लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी अप्रोप्रिएट फॉर अ स्टूडेंट लाइक मी, जिसने कभी सिविल सर्विसेज के बारे में ज्यादा, जिसको आइडिया नहीं है। मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट ही थी जिसने कभी सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा भी। आई वाज द फर्स्ट वन टू इवन जॉइन सिविल सर्विसेज। सो मुझे लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी द बेस्ट, बिकॉज मुझे इस सर्विस के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इंडिया में जो सेटअप है उसके बारे में पता लगेगा। एंड आई थिंक आई मेड अ राइट चॉइस। कॉमर्स में हालांकि मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया था, इट वॉज एन एवरेज स्कोर, बट पबैड में मेरा स्कोर कॉमर्स से ज्यादा था, एंड माई हाईएस्ट स्कोर एज आई टोल्ड वाज इन द जनरल स्टडीज, एंड ऐसे ऑल्सो आई स्कोर्ड अ गुड नंबर। सो दिस वॉज माई रीजन फॉर चूजिंग ऑप्शनल। और अगर हम बात करें कि एक एस्पिरेंट को ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए, तो एक तो देखिए यही है कि अगर आपका जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, रीड द सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिलेबस देखो। एंड आई ऑल्सो सजेस्ट द एस्पिरेंट की लास्ट 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी देखिए। सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 2-3 years, सो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड इफ यू फील कंफर्टेबल कि आपने पढ़ा है और आप कर पाओगे, देन यू अटेम्प्ट दैट, यू टेक दैट। बट आई हैव सीन ऑल्सो कैंडिडेट्स चेंजिंग देयर ऑप्शनल्स एंड दे आर नॉट टेकिंग द ऑप्शनल सेम एज द subject of the graduation. Especially I've seen engineering students shifting their optional, even from medicine background they shift also. So उसके लिए वो 2-3 चीजें देखते हैं कि किसमें स्कोर आता है, किसमें मटेरियल अच्छा अवेलेबल है ना, कोचिंग लेनी है तो किसकी कोचिंग अवेलेबल है। तो बट मेरा सिंपल सी एक एडवाइस ये है एस्पिरेंट्स को कि आप कोई भी सब्जेक्ट लो तो उसको आपको पढ़ के देखो, आपको उसको पढ़ने में अच्छा लग रहा है क्या, आपको उसको पढ़ के ऐसे लग रहा है कि मजा आ रहा है क्या, बिकॉज यू हैव टू एंजॉय दैट, राइट। आपको कम से कम 2 साल वो सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तो यू शुड एंजॉय। आपके दिमाग में भी जाना चाहिए आप जो पढ़ रहे हो वो समझ में आ रहा है, यू आर एबल टू ग्रास्प व्हाट इज बीइंग सेड, एंड देन यू हैव टू एक्सप्रेस। जो भी पढ़ोगे उसको एक्सप्रेस करना है। मेंस में तो काम ही यही है कि जो आपको आता है उसको अच्छे से आपको लिखना है, so that you score good. So you have to comprehend what you are reading and you have to express it well in the examination. So my consideration for an optional is कि आप जिस subject में comfortable feel करो, that yes you will be able to express yourself better in this particular topic, in this particular subject, उसी को आप लीजिए। डोंट गो बाय, अगर आप समझ ही नहीं पाओगे, सपोज कोई आपने ले लिया कि हाँ इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, बट अगर उसमें क्या है आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, उसको ग्रास्प ही नहीं कर पा रहे हो, या आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, आपके आंसर्स अच्छे नहीं आ रहे, देन व्हाट इज द यूज, देयर इज नो यूज ना। सो यू सी योर कंफर्ट लेवल, सी द सिलेबस प्रॉपरली, सी ऑल्सो द लास्ट 2 to 3 years क्वेश्चन पेपर्स, उनके आंसर्स, कुछ उस तरीके से बात करो, देखो। एंड आई थिंक these all things are important for deciding which optional you should take. Thank you, ma'am, for clearing all the doubts, because there's always doubts about optional when it comes to UPSC. So moving to the next question, we have, as you talked about mains.
So mains is the most crucial part of this whole journey, for this whole preparation journey, and answer writing plays the most important part in it. So my question is that can you explain the importance of answer writing and how to approach mains, because there are GS1, GS2, 3 and 4. आई थिंक मेंस, जैसे मैंने इनिशियली भी कहा कि मेंस में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हो, और आपका तैयारी इस तरीके से होना चाहिए कि उस टॉपिक में अगर 10 मार्क्स में कुछ पूछते हैं, 20 मार्क्स में पूछते हैं, तो यू शुड हैव फ्यू पॉइंटर्स, राइट। सो वो अगर 5 नंबर में पूछा है तो सिर्फ आप पॉइंटर लिख दोगे, अगर वो 10 नंबर में पूछा है, 20 नंबर में पूछा है, तो उसको आप इलेबोरेट करोगे। दिस इज हाउ यू जस्टिफाई व्हाट यू आर अटेम्प्टिंग ना। सो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू हैव अ क्लैरिटी। और वो क्लैरिटी कैसे आएगी, जब आप, जैसे सब स्टूडेंट्स का अपना तरीका है। जैसे मेरा तरीका ये होता था कि मैं अपने नोट्स बनाती थी, बट मेरे नोट्स ऐसे नहीं होते थे कि मैं पूरी पूरी किताब ही अलग से लिख रही हूँ। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मेरा जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें वो चैप्टर के ऊपर आई वुड मेक माई ओन हैंड रिटन नोट्स, और उसको मैं क्लब कर देती थी, स्मॉल चिट्स, a half page chit or whatever, so that when I'm revising I will remember कि these are the key points, key words। क्योंकि आप पूरे पूरे सेंटेंसेस अगर पूरे पूरे नोट्स में आप लिखने लग गए तो नोट्स ही बहुत बल्कि हो जाएंगे। और अगर कई स्टूडेंट्स का तरीका ये होता है कि पूरे पूरे नोट्स ही खुद बनाते हो, सो दैट इज अप टू यू। माई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वॉज कि मेरा जो कोर था किसी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में अगर कोई मैं बुक पढ़ती थी, तो उस बुक के ऊपर मैं पेज वाइज स्लिप्स या ऐसा कुछ अपना शॉर्ट स्लिप्स बना के उसको स्टेपल करती थी, so that when I'm revising, when I'm flipping through the book or the study material, I'm just looking at those slips। और अगर कोई माइंड में कंफ्यूजन है तो साथ में उसका इलेबोरेशन भी है उस पेज पे। यू जस्ट रीड एंड गेट योर डाउट्स क्लियर। सो दिस वाज माय, मेरा ये नहीं था कि पूरे अलग से लिखती थी। सो एवरी स्टूडेंट हैज हिज और हर ओन अप्रोच। तो मेरा इस तरीके से अप्रोच रहता था। तो मेंस के लिए एक तो जरूरी है कि आपके खुद के नोट्स होने चाहिए जो कि आप रिपीटेडली रिवाइज कर पाओ। देन आंसर राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर राइटिंग में क्या है कि क्वेश्चन को समझ के उसमें सेलिएंट फीचर्स लिखने हैं, और वो तभी आएंगे जब आपके नोट्स, आपकी रिवीजन अच्छी होगी। सो उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस भी करें। इफ पॉसिबल यू ऑल्सो हैव प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट होते हैं इधर कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन, या वैसे भी मिल जाएंगे। आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। हैव सम मॉक टेस्ट एंड आप ये देखो कि आपका फ्लो ऑफ आंसर राइटिंग कैसे आ रहा है। इज इट क्रिस्प, आर यू एबल टू कम्युनिकेट। और आप 2-3 बार लिखोगे ना, आपको खुद को ही समझ में आएगा कि मेरी गलती कहाँ पे है या मैं कैसे इंप्रूव करूं। क्योंकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके मॉक टेस्ट दोगे तभी आप अच्छा लिखोगे, ऐसा नहीं है। यू हैव योर टाइम फ्रेम इन हैंड एट योर होम। आपके 2-3 क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो घर पे। एंड आप ये देखो कि आपका एक एक्सप्रेशन कैसे जा रहा है। आप जो घर में जो आंसर राइटिंग कर रहे हो उसमें क्या आप सेटिस्फाइड हो कि इसमें जो 5 या 10 पॉइंट आने चाहिए थे, ये क्वेश्चन अगर मैंने एग्जामिनेशन कंडीशंस में मैंने अटेम्प्ट किया तो क्या मैं उसमें कर पा रहा हूँ या क्या कर पा रही हूँ। सो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि हम थोड़ा सा ध्यान दें। वर्ड लिमिट होती है जनरली अब हर क्वेश्चन की, एंड वी ऑल्सो हैव अ स्पेस लिमिट ऑल्सो ना। एंड डेफिनेटली अगर आप ये फॉलो अप नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज 3 घंटे में आपको इतना सारा अटेम्प्ट करना है। एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का प्रयास जरूर करें मेंस में। प्लीज ट्राई एंड अटेम्प्ट द एंटायर पेपर, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। ओके, सो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अननेसेसरी के जार्गन्स को अवॉइड करें। वी हैव टू बी क्रिस्प एंड क्लियर इन आवर आंसर्स। हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो उसमें आने चाहिए। देयर शुड बी अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। हमारा जो वर्ड लिमिट है, नाउ दे ऑल्सो इंडिकेट अ वर्ड लिमिट, उसको हम वर्ड लिमिट को फॉलो अप करके, हम उसको स्टिक करके हम उसको करें। एंड आई थिंक योर प्रैक्टिस, योर रेगुलर प्रैक्टिस विल ऑलवेज हेल्प यू। और एक अपना हैंडराइटिंग में भी थोड़ा ध्यान देना है। ये एस्पिरेंट्स को मैं एक चीज और सजेस्ट करती हूँ कि आप जो लिख रहे हो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ही पढ़ पा रहे हो, नो, सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए। इवन दो एट दिस स्टेज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर हैंडराइटिंग, बट स्टिल ट्राई एंड राइट लेजिबली एंड क्लियरली। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो लिख रहे हो वो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
So I think these are the things which we can keep in mind when we're preparing for your mains examination. Thank you, ma'am, for sharing these insights. I hope that this answer will definitely give students a perspective and motivation to write, how to write and how to approach the exam. Another very important thing when it comes to UPSC is that UPSC is a very long journey. We all know that, and most of the students find it very exhausting and challenging at the same time. Yes. So, how to maintain that consistency and motivation at the same time? आई थिंक ये माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये it is not short. So have that, feeling of self acceptance. Secondly, you have to stay focused and motivated. This is also very important, that there would be low phases of motivation, and there would be so many factors in the society. जैसे for example, we are all human beings, we are all social beings. तो हम बैठ के पढ़ रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो चिल कर रहे हैं, किसी का नौकरी लग जाएगा, किसी का शादी है, कोई फेस्टिवल है, बर्थडे पार्टी है, कोई मूवी देखने जा रहा है, तो आपको ये भी लगेगा कि अरे मैं कैसे टाइम वेस्ट कर रही हूँ और आगे होगा भी नहीं होगा. आई वुड, एंड इफ आई डोंट क्लियर, अगर मैं फेल हो गया तो मैं कैसे फेस करूंगा समाज को, है ना. सो क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपकी जवाबदेही आपकी खुद की है. Basically, you are answerable to only yourself and maybe people who help you in your struggle. So they may be your parents, your close family, your close friends, जिन्होंने आपके स्ट्रगलिंग टाइम में आपकी मदद करी. सिर्फ उन्हीं को ही even they will not ask you any question because they trust in you, right? So जिन्होंने हमेशा आपका सपोर्ट किया है, अगर आपका क्लियर नहीं भी होता तो they will understand that you gave your best, but maybe life had something else as a plan for you to move forward. So जो हमारा कंसिस्टेंसी और उसकी बात है, आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट टू हैव इन माइंड कि एक तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी रिकॉग्नाइज करें कि हमें क्या चीज करने से खुशी मिलती है, व्हाट इज इट दैट वी एंजॉय, एंड हमारे को अगर हम लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन में होंगे तो हम क्या करेंगे कि जिससे हम उस चीज से उबर के आए, राइट. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड when we have that dedication and commitment in ourselves, then I think we can definitely face any kind of challenges which come forward in life. और ये जो we have some mentors, we have some family friends, we have some guide, या कोई ऐसी जीवनी, कोई ऐसे इंस्पिरेशनल मोटिवेटर हो जिनके बारे में आप पढ़ते हो, जिनके कोट्स पढ़ते हो, तो डेफिनेटली डू दैट, बिकॉज ये सब जो चीजें हैं ये आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहने का हौसला देती हैं. सो आई थिंक बी ट्रू एंड ऑनेस्ट टू योर ओन एफर्ट्स, बी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ, एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क. सक्सेस अगर एक्स तरीके से नहीं मिलती है तो वाई में जरूर मिलेगी, ये डेफिनेटली बात है. एंड किसी की भी आप लाइफ की स्टोरी देख लीजिए, एनी सक्सेसफुल पर्सन अराउंड यू, एवरीबडी वुड हैव अ स्ट्रगलिंग फेज इन देयर लाइफ, है ना. सबकी जिंदगी में कोई ना कोई उतार चढ़ाव जरूर होंगे और वो चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे आए हैं, और अब वो हमारे सामने इस तरीके से सक्सेसफुल हमें लग रहा है वो हैं, लेकिन उनकी लाइफ में आज भी चैलेंज है. मैं आईएएस ऑफिसर तो बन गई, लेकिन 14-15 साल में मैंने बहुत चीजें देखी. I worked in Tripura, I worked in remotest part of the country, I traveled a lot, I used to meet people, try and solve their issues. Sometimes I was successful, sometimes मैं नहीं कर पाती थी. I used to feel demotivated कि as an officer मुझे ये करना चाहिए but मैं नहीं कर पा रही हूँ. So life will keep on throwing challenges to you, but you have to keep moving. You have to face them and keep moving. That is the most important thing for all of us to remember. Thank you for sharing these inspiring words. It's what truly motivating, not just for all of us here at Exodium and beyond that. So, ma'am, you have been in civil services for the last 14 years and contributed in the sector of women empowerment, sports, health, education, and so much and so forth. So, it would be very grateful for us if you can share your experience in a brief.
एक्चुअली एक्सपीरियंसेस तो काफी हैं एंड दिस इट कैन गो ऑन till long, but I think जो भी मैंने initiatives लिए, I would say now 14 year plus मेरी सर्विस जर्नी हो गई है. आई वर्कड इन त्रिपुरा, आई वर्कड इन हरियाणा. त्रिपुरा में ऐसे भी एरियाज में मेरी पोस्टिंग रही जहाँ पे टू रीच द लास्ट पार्ट ऑफ द हैबिटेशन जहाँ लोग रहते थे, स्पेशली द विलेज कमिटीज, द ट्राइबल पॉपुलेशन. So you had to walk on foot. So you know, way back in 2009-10 I'm talking about. So but then we used to walk, we used to have administrative camps there. और वहाँ पे जाके लोगों के बीच में रहना, उनके लिए काम करना, आई थिंक इट गिव्स सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. एंड आई ट्राई टू वर्क फॉर वुमेन वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन. अर्बन डेवलपमेंट में भी मैंने काम किया एज अगरतला सीईओ, Agartala Municipal Council CEO. Then I worked in Faridabad, I worked in Gurugram. So I think it has been a wonderful experience. Of course, many things I could do, many things I could not do. There are various limitations. You know, हमारा जो सिविल सर्विसेज का एक डायनामिक पैराफर्नेलिया है जिससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेज है. You have media, you have press, you have judiciary, you have other 9 departments, you have civil society organizations, NGOs, public at large. So there are many things which affect your working, but I think 2-3 things are very important जो मैंने सीखा है. एक तो ये कि आपका टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. सो यू शुड हैव योर कैपेसिटी बिल्ड अप इन योर टीम्स, और जो टीम है उनको अच्छे से आपको मोटिवेटेड करके रखना है, एंड ऑल्सो बिल्ड देयर कैपेसिटी. सो दे आर द पीपल हु विल वर्क फॉर एनी इनिशिएटिव. और उसके साथ में हमारा जो पब्लिक कनेक्ट है, that connect with the citizens, that is also very important. चाहे मैंने फरीदाबाद में काम किया, चाहे मैंने झज्जर में हरियाणा में काम किया, चाहे मैंने गोमती डिस्ट्रिक्ट में काम किया या एज एसडीएम अम्बासा काम किया, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि मैं पब्लिक के साथ कनेक्ट होके काम करूं. सो दैट सिटीजन पब्लिक एंड गवर्नमेंट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड सिटीजन टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आज के दिन में डिजिटल इनिशिएटिव्स तो डेफिनेटली हेल्प कर रहे हैं, बट दे कांट बी रिप्लेसमेंट ऑफ योर फिजिकल फील्ड विजिट्स. आपका जो फिजिकल विजिट्स होता है, फील्ड विजिट्स होता है, सरप्राइज इंस्पेक्शंस होता है ऑफिसेज का, आंगनबाड़ी सेंटर्स, हेल्थ सब सेंटर्स, स्कूल्स का, सो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है. सो आई थिंक एज एन ऑफिसर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दैट कनेक्ट विद द पीपल. एंड अगर लोगों को ये लगता है कि आपकी इंटेंशन जेन्युइन है, यू आर ट्रू इन योर एफर्ट्स, सो डेफिनेटली दे विल सपोर्ट यू ऑल्सो. और कोई ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन भी कई बार हमारी लाइफ में आती है. कई बार एज एडमिनिस्ट्रेशन आई ऑल्सो फेस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आई ऑल्सो फेस्ड देयर वाज, मतलब ऐसे ट्रिकी सिचुएशंस आते हैं जिसमें आपकी फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं इमीडिएटली हेल्प करेगा. सो देन यू हैव नो ऑप्शन देन टू मोबिलाइज योर इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो आपके इनफॉर्मल चैनल्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे सिचुएशन को डिफ्यूज करने में, सिचुएशन को हेल्प करने में. दैट इज, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन सिविल सर्विसेज. Thank you, ma'am, for sharing your whole experience with us. And I hope you continue to inspire the whole world with your spirit and make India proud on a global level. Since we are running, my pleasure, ma'am. Since we are running out of time now, so one last question that I would like you to give one advice to all the aspirants watching this live. For aspirants, I would like to just mention कि हमें लाइफ में कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं रहना है. आई अंडरस्टैंड कि लो फेजेस ऑफ डीमोटिवेशन सबकी जिंदगी में आते हैं, बट उनको फिर बहुत लंबा अपनी जिंदगी में ठहरने नहीं देना है. यू राइज फ्रॉम दोज सिचुएशंस एंड चैलेंजेस. और अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं भी होता है, देन ऑल्सो डोंट बी डिजेक्टेड फ्रॉम लाइफ कि अब आगे मैं क्या करूंगा, कुछ सब खत्म हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. सिविल सर्विसेज इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आई हैव सीन मेरे कलीग से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, उनका नहीं हुआ now, but now they are doing so good. Somebody is an entrepreneur, somebody has got a law firm, somebody कोई बाहर से हायर एजुकेशन करके आए बाद में, and they are doing so much good. So this is not the end of the world, but keep trying, keep giving your 100%. जो हमारा जो एफर्ट है वो हमें देते रहना है with a positive approach in our mind.
एंड जस्ट हैव 2-3 थिंग्स इन योरसेल्फ कि अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी ऐसा कुछ मेजर सेटबैक नहीं है, हम कुछ और अच्छा करेंगे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। सेकेंड बात है कि बी ट्रू एंड ऑनेस्ट इन योर ओन एफर्ट्स। जो आप कर रहे हो उसमें जेन्युइनली अगर तैयारी कर रहे हो तो ढंग से तैयारी करो। टाइम पास के लिए या सोसाइटी को दिखाने के लिए तैयारी नहीं करनी है। ये तैयारी जो आपको खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए और लोगों को कुछ अच्छा, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए करनी है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वॉट एवर करियर you choose, whatever career and profession we choose, we also should contribute towards our society and country. देश के लिए कुछ करना है. We are all proud to be Indians. India is now a global leader. We are a global nation. So we have to have that commitment to serve our country and nation in whatever capacities we can. So this was my message and appeal to the aspirants. And of course, it is very important to stay happy and healthy. अपने हेल्थ का भी ध्यान दें, अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दें। एंड वंस यू नो ट्राई, देयर इज लॉट मेनी पोटेंशियल। स्वामी विवेकानंद जी ने जो एक कोट, उनका मैं कई बार मेंशन करती हूँ, ही मेंशन दैट ऑल पावर इज विद इन यू एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग एंड एनीथिंग। यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड बिलीव इन दैट एंड give your efforts and achieve your goals. So उन्होंने भी यही बात बोली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम always also believed in the power of youth. So just remember that you have to keep giving efforts and you will definitely achieve your goal. Stay positive, stay happy, stay healthy. और एक हिंदी का प्रोज है, उससे मैं एंड करना चाहूंगी, डेडिकेटेड टू यू ऑल, कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। सो जिसने कभी कोशिश ही नहीं की वो ऑलरेडी डिफीटेड है, राइट? सो डेफिनेटली हम उस कैटेगरी में ना आए। जिंदगी में जो चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करते हुए हम आगे बढ़े। अपने लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए भी काम करें, दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करें। इस जज्बे के साथ समाज में आगे बढ़ते रहिए। सभी को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। मे यू ऑल स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू। जय हिंद। Thank you so much, ma'am. That's a wonderful advice, and I hope each of us can adopt this in our life and seeing that UPSC is not the end of the journey, but a start to a new life ahead. So thank you so much, ma'am, for joining in. Before wrapping up with this session, I would like to present the vote of thanks. Thank you, ma'am, for accepting our invite and taking time out of your busy schedule. Also, for your cooperation and support during the whole process is commendable. I'm very sure and certain that audience must be filled with new energy, and your words of wisdom has inspired all of us, not just in Exordium, but all the people watching this live. This was such an insightful session, and hoping that you enjoyed hoping you enjoyed this session as much as Thank you so much. I also had a nice time. I always try and share my experiences with the young population, with the young India, because you are all the future leaders. और आप लोगों के ऊपर ही हमारे देश की प्रोग्रेस निर्भर करती है। सो आप लोग पॉजिटिव काम कीजिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड देश के लिए कुछ ना कुछ, समाज के लिए कुछ अच्छा करिए। यही मेरी आप सबके लिए रिक्वेस्ट है और शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। Thank you, ma'am. It was my honor to host you for this session. Thank you so much. Thank you. Best wishes. Best wishes. Okay. I hope you all have enjoyed the session. And lastly, I'd like to thank all the audience out there who watched this live and being so patient and supportive throughout the live. Good wishes to everyone watching this live, and best regards from Exordium. Thank you so much.